Welcome to Campus Prom. Today we're going to City University, which is the best private university located on Firozpur Road, Ludhiana, Punjab. It owes its genius to the establishment of the City Education Society in Jalandhar in the year 1997. After the legacy of more than 22 years, CTU was established in 2017 under the excelling vision of Sardar Charanjit Singh Channi, Chancellor CTU. CTU, the best multidisciplinary student-centric, research-focused university in Punjab, offering a full range of academic programs at the undergraduate, postgraduate and doctoral level. The multidisciplinary curriculum leads students towards a strong foundation in the disciplines of design and innovation, humanities and physical education, agriculture and natural sciences, engineering and technology, computer applications, pharmaceutical and healthcare sciences, law, management studies, hotel management and airlines and tourism, while enabling them to expertise in the field. The campus is completely vibrant, happening and always active with media. Various newspaper covers CTU for its education news, research and colorful events. City University is among top 50 universities in India according to ARIIA. It is awarded as one of the best universities in research in India. Sardar Charanjit Singh Channi, Chancellor CTU, talked to our team and share his views with our channel. ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਿਚੀ ਗਰਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ TP ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, TP ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ TP ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2000 'ਚ 3-4 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ 14-15 ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
प्लस मैं ये समझदा कि जे बच्चे कोलों मैं कोई 100 रुपया लेना तो 75 रुपये उन्होंने मैनूं वापस करने चाहिए है, ਉਹਦੀ एजुकेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ट्रेनिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, प्लेसमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जे ये मैं नहीं करता तो मैं समझदा कि मैं समाज नाल धोखा कर रहा। फिर एजुकेशन, जिस तरह कि तुसी मेरी इंट्रोडक्शन कराई है, एजुकेशन के खेतर जदों असी रीयल एस्टेट का काम करते सी, सानू अफसरां दे बाहर बैठना पैंदा सी ते सानू बुलांदे भी नहीं सी अंदर। हुण असी अपना कार्ड भेजीदा, चांसलर फट सानू अच्छी चेयर दित्ती जाती है, कहंदा भी असी समाज दे विच जिहड़ी सानू इज्जत मिली है एजुकेशन करके, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ समाज ਨੂੰ वापस भी देना बनता वा। जे असी नहीं देवांगे फिर असी ਇਹਦਾ समझते हाँ कि समाज नाल धोखा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो होर कोई तुहाडी इस तो इलावा कोई क्वेश्चन होवे तो दसो। सर, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭयंकर ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸਿਟੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। हाँ जी, देखो जी, मैं आप तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकिया, कुछ मजबूरी सी। मेरा जरा जीना इसी का नाम है, वो तुहानूं ये चीज़ बड़ी भली भांति दसी होएगी। लेकिन मेरे दोने बेटे फॉरन च पढ़े हुए हैं, तो अज वो दोने ही कंधे नाल कंधा मिला के सारे काम कर रहे ने। मैं ये समझदा कि जिंदगी दे विच असी हमेशा ही सारे जने पैसे नूं लैके पिछे पिछे चलते हैं। मैं नहीं कहता कि पैसा कमाना कोई माड़ी गल है, पैसा कमाना बहुत अच्छी गल है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए है कि असी समाज नूं पैसे दे कमान दे नाल नाल कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो जिहड़ा भी काम असी कर रहे हैं, एजुकेशन का कर रहे हैं, भावें होर कोई कर रहे हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੌਟ ਬਿਲਟਅਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। तो मैं एक चीज़ स्ट्रगल की मैं गल करांगा। मैनू किसी ने पूछा कि इस जिंदगी दे विच सुक्सैस के की मायने ने, सुक्सैस कदों आंदा वा। मैं उलट उन्होंने जवाब दिता कि फेलियर फास्टर, जितनी जल्दी आप फेल हो जाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी फेलियर हो जाएंगे सक्सेस नज़दीक है। अगर फेलियर से डरते रहें तो सक्सेस आगे निकलता रहेगा और ज़िंदगी में फिर सक्सेस नहीं पा पाओगे। ये मैं अपनी मैसेज देता हूँ सभी को। सर, और एक मैं और चीज़ समाज को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको हमेशा ही ईगो बहुत ख़राब करती है। ईगो से बचिए। उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जैसे चरणजीत सिंह हूँ, आप भी समझते हैं मैं चरणजीत सिंह हूँ। अगर मैंने साथ में चांसलर जोड़ लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे में ईगो आ गई। अगर मैंने चांसलर नहीं जोड़ा तो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। जैसे आप एक पंजाब प्लस के मालिक हैं, ठीक है, अगर रिची गर्ग आप बात करेंगे तो शायद आप में ईगो ना आए। अगर आप प्रेसिडेंट ये पंजाब प्लस के कहेंगे प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं बाहर से ना भी हो, अंदर ज़रूर ईगो आएगी। तो
तो इन चीज़ों से मैं एक जितने भी मेरे सुनने वालों हैं उनको मैं रिक्वेस्ट देता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कभी बात करें, आगे बढ़ें, डिस्कशन करें, यह ज़रूर ख्याल रखें अंदर और बाहर मैं कहीं ईगो तो नहीं कर रहा। सर, जैसे अभी +2 के और 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी लेवल के सिस्टम में आपने पढ़ाई अगर आप करते हो तो आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होती है। क्या कहना चाहेंगे कि अभी जैसे रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं 10th के भी और +2 के भी, और इन दिनों में अगर बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ रहे हैं तो उनमें एक नई किस्म का जोश, एक नई किस्म की उनकी एनर्जी लेवल्स और जो क्रिएशंस हैं यूनिवर्सिटी की, और जैसे सिटी का नाम सारे मतलब जैसे आपके पंजाब हिंदुस्तान यानी वर्ल्ड में जो है बच्चे यहाँ से मल्ले मारकर बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं तो अगर वो बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो उनको एक नई किस्म की जो सेवाएं, एक नई किस्म का उनमें जोश, एक नई किस्म की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन बच्चों की होगी? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं आपको मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो हमने इस साल नई चीज़ शुरू की है। आपको मालूम है कि मोस्टली बच्चा जो है बाहर जा रहा है, तो वो +2 के बाद ही वो पहले आइलेट्स करता है, फिर वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करता है और पासपोर्ट बनवाता है, फिर वो 1 साल लग जाता है उसको बाहर जाने में। हमने एक नई चीज़ शुरू की है यूनिवर्सिटी में, और जलंधर वाले जो मेन कॉलेज है ना हमारा, वहाँ हमने ये चीज़ जो कि 12वीं के बाद शुरू करते थे 10th के साथ ही शुरू कर दी है कि हमने 2 जगह पर पंजाब बोर्ड से एफिलिएशन ली है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो हम एक तो +1 +2 कराएंगे यूनिवर्सिटी में, जो कि कभी नहीं किसी ने करवाई। साथ में उनका पासपोर्ट बनाएंगे, उनको आइलेट्स कराएंगे और उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। इसको हम कॉलेजिएट स्कूल कहते हैं। तो वो जो 12वीं के बाद वो बच्चा करता था उसको, क्योंकि आप समझते हैं कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई 2 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसके पास 4 घंटे और होते हैं। तो उस 4 घंटे में हम उसका पासपोर्ट बनाएंगे, आइलेट्स कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, और जो 12वीं के बाद उसका 1 साल फालतू खर्च होता है वो इसी में जज़ब हो जाएगा, और 12वीं करते ही हम उसको फ़्लाइट देकर वहाँ भेज देंगे। इसके लिए हमने मेरे बेटे के नाम पर सिटी ग्लोबल एजुकेशन का ऑफ़िस जलंधर बस स्टैंड के सामने खोला हुआ है, तो वहीं से सारा कुछ होता है। ये हमने एक नया काम किया है। बाकी +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो एक अलग है, वहाँ बाकी जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो अलग है। लेकिन ये कॉलेजिएट स्कूल वाला नया कंसेप्ट है जिसमें हम ये आइलेट्स और स्किल और सारा कुछ फ्री करा रहे हैं, सिर्फ +1 और +2 की फ़ीस ले रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ये सिटी कैंप्स में यहाँ पर हम लोग लुधियाना बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे फिर अब +1 और +2 में भी एडमिशन ले सकते हैं? इस बार अभी पहले साल शुरू हुआ है, 70 के करीब बच्चे, आज 70 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं 10th के बाद। अब ये 11वीं 12वीं यहाँ करेंगे, हम इनका पासपोर्ट भी बनाएंगे, आइलेट्स भी कराएंगे और स्किल भी कराएंगे, फिर इनको बाहर भेज देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी भी, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान में ये जा रहा है, अगर कोई बाहर बैठे स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में आए कि हम लोग भी इस स्कीम के अंडर, क्योंकि आज हर इंसान जो हर बच्चे हैं वो बाहर जाने के लिए इच्छुक हैं, तो क्या यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि बच्चे? सारा हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ अंदर अवेलेबल है। 1200 बच्चे अंदर रहने का प्रबंध है, तो कोई भी बच्चा जो भी अंदर हॉस्टल लेना चाहे ले सकता है। सर, आपने हमें समय दिया, और इतने आप आज से 18 वर्ष पहले हमने, जब ये ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, तब हमने आपका इंटरव्यू किया था, और आज हम 18 साल के बाद कर रहे हैं। वही चन्नी जी, वही सिंपलिसिटी, वही खुशी फेस के ऊपर आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच गर्ग साहब, आपने हमें ये मंच दिया, और थैंक यू वेरी मच। हम पंजाब प्लस के बहुत आभारी हैं, उनके जो दर्शक हैं
उनको मेरा हाथ जोड़कर सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।